Hello everyone, this is Omkar Deshpande. Welcome you back for the business study online classes. So in the previous class we have covered the topic called emerging mode of the business, and today we are going to start a new topic, that is internal trade. And this is not a new thing for you because already in the offline classes also which we have covered this internal trade, but not in this topic. It was in the second topic which we have covered it out, or second topic, the forms of business organization, in that which we have covered it out. Okay, but in today's class we are going to learn in detail about what is this internal trade. First of all, internal trade means what? Buying and selling of goods and services within the boundaries of a nations are referred to as internal trade. What are the exchanges take place, buying and selling take place within the national boundaries of our nation, यानी कि हमारे देश में ही जो एक स्टेट से और एक स्टेट, तो विद इन द इंडिया में जो बाइंग एंड सेलिंग हो जाता है, फॉर दैट ओनली वी कॉल इट एज अ इंटरनल ट्रेड. तो इंटरनल ट्रेड में जहां तक देर आर टू टाइप्स ऑफ आर देयर. वन इज होलसेल ट्रेड, सेकेंड इज रिटेल ट्रेड. तो चलो पहले हम बात देखते हैं होलसेल ट्रेड मतलब क्या है. होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ लार्ज क्वांटिटी फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और intermediary use. मतलब a wholesaler, what a wholesaler does, he is going to buy directly from the factory in the bulk and the large quantity he is going to purchase from the factory, and his ultimate aim is to sell it to the retailers and ultimately sell it to intermediately users. So by keeping this only intention to sell it out, he is going to purchase in a large quantity and he will sell it to the retailer. This is what about wholesale trade. So next we'll see what is retail trade. When it comes to retail trade, a retailer is a business enterprise that is engaged in the sale of goods and services directly to ultimately consumer. When a wholesaler buys large quantity from factory, it's a retailer who is going to purchase from the wholesaler and sell it to ultimately the user of it, that is consumer. Consumer के लिए directly they are going to sell it out. तो यहाँ पर concept कैसा होता है, जहाँ पर एक wholesaler रहता है, फैक्ट्री से large quantity में लेगा और retailer को sell करेगा, और retailer वो goods लेके आके ultimately जो consumers रहते हैं, customers रहते हैं, उनको वो sell करेगा. This is called as a retail trade. तो देखेंगे wholesaler का डिटेल में देखेंगे. The service of wholesaler to manufacturer. एक होलसेलर मैन्युफैक्चरर के लिए कैसा बेनिफिट करके रहता है. मैन्युफैक्चरर मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह रहते हैं, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उन लोगों के लिए क्या बेनिफिट करके देगा. व्हाट आर द बेनिफिट एंड व्हाट आर द सर्विसेज ही इज गोइंग टू गिव इट एट. फर्स्ट थिंग इज अबाउट फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन. सो हमेशा ये होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करता है कि टू प्रोड्यूस इन अ लार्ज क्वांटिटी, बिकॉज ही वांट टू बाय इट इन अ लार्ज क्वांटिटी. वो उसको एनकरेज हमेशा करता है कि टू प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी. होलसेलर कलेक्ट द स्मॉल ऑर्डर्स from the number of retailers and pass on the pool of such orders to manufacturer and make purchase in a bulk quantity. This enables the producer to undertake production on a large scale and टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल. तो हमेशा एक होलसेलर जो है, जो मैन्युफैक्चरर के लिए एनकरेज करता है लार्ज स्केल प्रोड्यूस करने के लिए, उनके पास से लेके आके एक छोटा छोटा अमाउंट ऑफ ऑर्डर लेके रिटेलर को फुलफिल करता है. ये फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट, बेयरिंग ऑफ रिस्क. होलसेलर मर्चेंट डील इन द गुड्स इन देयर ओन नेम, take delivery of the risk and delivery of the goods and keep the goods purchased in a large lot in their wholesaler. In the process, they bear a variety of risks such as risk of fall in price, theft, privileges, stoppage, fire, etc. To the extent they reveal the manufacturer for bringing their risk. तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक होलसेलर दे आर द पीपल हु इज गोइंग टू टेक अ बिग अमाउंट ऑफ रिस्क हियर. एक मैन्युफैक्चरर गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा, लेकिन होलसेलर जब परचेज करता है तो रिटेलर आके सब गुड्स तो नहीं लेगा, जैसा ऑर्डर रहेगा ऐसा परचेज करेगा, लेकिन उतना दिन तक ये सब गुड्स का जो सेफ्टी रख के लेना है, उसको फायर नहीं लगना है, तो ऐसे गुड्स को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना है, ऐसा देखने का जिम्मेदारी किसका बनता है, होलसेलर बनता है. So that is the what happened. Wholesaler is the person who is going to bear here risk, because कई बार प्राइस फ्लक्चुएशन होते जाते हैं. Many other uncertainty events will be taking place. ये सब चीज को उसको ओवरकम करना होता है. That's what as a wholesaler he is the person who is going to bear those risk.
द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंसी। जब बात फाइनेंशियल असिस्टेंसी आता है, एज अ मैन्युफैक्चरर के लिए अगर उसको फंड का अगर कम आ गया, फंड का ज़रूरत है, तो डेफिनेटली होलसेलर उसको फंडिंग का भी हेल्प करेगा। और रिटेलर जब एक स्मॉल क्वांटिटी में लेगा, उसको अगर उधार से चाहिए तो वो भी फैसिलिटी वो करके दे सकता है। सो लाइक दैट व्हाट हैपेन, एक फाइनेंशियल असिस्टेंसी दोनों को भी, एक मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स को भी होलसेलर्स प्रोवाइड करेगा यहाँ पर। सो द होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंसी टू द मैन्युफैक्चरर इन द सेंस दैट दे जनरली make the cash payment for the goods purchased by them. Sometimes they also advance the money to producer to buy the order placed by them. कई बार एडवांस अमाउंट देते हैं, कई बार पहले अमाउंट दे देते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। इससे क्या हो जाता है, एक मैन्युफैक्चरर को भी पैसे आ जाता है जो प्रोडक्शन में लगा के गुड्स को रेडी कर सकता है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी होलसेलर मैन्युफैक्चरर के लिए प्रोवाइड कर देता है। देन एक्सपर्ट एडवाइस, तो यहाँ पर होता क्या है, एज अ मैन्युफैक्चरर वो गुड्स तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन मार्केट कंडीशन होलसेलर नोज दैट, एक होलसेलर को पता रहता है कि एक मार्केट में कस्टमर्स के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, तो उससे बेहतर अच्छा रिटेलर को पता रहता है। बट एक रिटेलर क्या करेगा, होलसेलर को कम्युनिकेट करते रहता है, तो होलसेलर को एक मार्केट के बारे में पता रहता है। तो हमेशा होलसेलर क्या करेगा, एक मैन्युफैक्चरर के लिए एडवाइस देगा कि कैसा प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट में क्वालिटी कैसा रहना चाहिए, उसमें फीचर्स क्या रहना चाहिए, क्या मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें क्या हो जाता है, एज अ होलसेलर ही एडवाइस फॉर द manufacturer. So as the wholesalers are in direct control with the retailer, they are in a position to advise the manufacturing about the various aspects including customer taste, preference, market condition, competitive activity and the feature preferred by the buyers. Buyer को क्या चाहिए, competition कैसा चल रहा है, consumer का taste, preference, habit क्या क्या है, so all these things they are going to, इसके बारे में information wholesaler manufacturer को देगा। तो that is what about expert advice। देन उसके बाद में आता है फैसिलिटिंग द प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, देखो होलसेलर क्या करेगा, ऑलवेज मैन्युफैक्चरर के लिए ऐसे एनकरेज करेगा कि कभी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को स्लो करना नहीं है, प्रोडक्शन एक्टिविटी आपका कंटिन्यूस रखो। तो आप जितना भी गुड्स प्रोड्यूस करोगे, आई एम रेडी टू बाय इट आउट, यानी कि एक होलसेलर का ये गारंटी देगा मैन्युफैक्चरर के लिए, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसको कंटिन्यूटी रखो, उसको बीच में कहीं भी स्टॉप मत करो। बिकॉज अगर बीच में अगर वो स्टॉप कर दिया तो क्या हो जाता है, होलसेलर के पास गुड्स कम आ जाता है। जब होलसेलर के पास गुड्स कम आता है तो रिटेलर जब आ जाते हैं तो उसको देने के लिए उसके पास नहीं रहता है। तो इसीलिए क्या करेगा, होलसेलर ऑलवेज एनकरेज द मैन्युफैक्चरर टू continuously produce the goods. So the wholesaler facilitate continuity of production activity throughout the year by purchasing the goods as and when they are procured and storing them till that these are demanded by retailer consumer in the market. तो एक मैन्युफैक्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज देखो वो तो मैन्युफैक्चर करेगा गुड्स, लेकिन गुड्स मार्केट में आना चाहिए ना, तो ये होलसेलर क्या करेगा, उनके पास से सब लेके वो सेल करेगा। सो लाइक दैट एक प्रोडक्शन एक्टिविटी कंटिन्यूस रखने में भी होलसेलर मैन्युफैक्चर के लिए मदद करेगा। देन नेक्स्ट स्टोरेज। स्टोरेज का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। देखो एज अ मैन्युफैक्चरर जब गुड्स को मैन्युफैक्चर कर देता है, गुड्स को रेडी कर देता है, स्टोरेज रखने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। बट बीइंग अ होलसेलर ही विल टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो भी गुड्स है वो परचेज करके जहां के स्टोर करके रखना है वो सबका जिम्मेदारी होलसेलर लेगा। सो द होलसेलर टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री एंड कीप देम इन अ गोडाउन होलसेलर warehouse. They reduce the burden of manufacturing, providing storage facility for the finished product. तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर के लिए एक इसके बारे में चिंता नहीं है कि हमको कहाँ स्टोर करना है गुड्स, ऐसे कुछ नहीं है। होलसेलर लेके ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर ही इज गोइंग टू स्टोर दोज ऑल द गुड्स इन हीज गोडाउन, जैसा रिक्वायरमेंट आता है वो फुलफिल करते जाएगा। तो ये था होलसेलर गिव्स द सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर। देन उसके बाद में देखेंगे रिटेलर। ये कौन है अभी रिटेलर? रिटेलर कौन है? जो होलसेलर के पास गुड्स लेगा और अल्टीमेटली कंज्यूमर को सेल करेगा। तो एज अ रिटेलर व्हाट आर द बेनिफिट ही इज गोइंग टू गिव इट टू कंज्यूमर। एक रिटेलर होने के नाते एक कंज्यूमर जैसा हम जैसे कस्टमर्स को क्या बेनिफिट करके देगा? तो फर्स्ट है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि जब हम जाते हैं शॉप को परचेस करने तो वो गुड्स अवेलेबल उसके पास रहना चाहिए। नहीं तो आज मैं जाऊंगा ही विल टेल आफ्टर 2 days टू कम, तो ऐसे सब हो गए तो इट विल बिकम प्रॉब्लम। सो अवेलेबिलिटी, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट देखने का जिम्मेदारी रिटेलर का बन जाता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ द रिटेलर टू कंज्यूमर इज टू मेंटेन द रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर। जो भी पूछेगा, हम जब शॉप में जाते हैं जो भी गुड्स पूछते हैं उनके पास रहना चाहिए, ये जिम्मेदारी रिटेलर कंज्यूमर को देता है और रिटेलर दे विल कीप इट ऑल दोज गुड्स रेडी।
ओके, देन न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी नया प्रोडक्ट आने दो वो प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन देना है, उसका बारे में बताना है, ये सब चीज़ें रिटेलर करना होता है एक कंज्यूमर के लिए। बाय अरेंजिंग फॉर effective display of product and through their personal selling efforts, retailer provide the important information about the arrival of special features etc of a new product to the customer। जो नया प्रोडक्ट आता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना है, उसको अच्छे से डिस्प्ले करना है, ये सब चीज़ें रिटेलर करेगा। Then convenience in buying, so retailer generally buys goods in large quantity and sell them in a smaller quantity according to this requirement of the customer. Also they are normally situated very near to residential area and remain open for a long hours. They offer a great convenience to the customers in buying the product of their requirement. Convenience in buying, तो कहीं ना कहीं the person who want to buy the goods उसके नियर बाय एरिया में ही ये शॉप सिचुएटेड रहता है। इससे क्या होता है, जब कस्टमर बाहर जाएगा तो उसको आसानी से प्रोडक्ट मिल जाता है, बहुत दूर तक जाने का भी, मार्केट तक जाने तक भी उसको ये नहीं होता, वहाँ का वहाँ ही वो सेल कर दे। तो ये रिटेलर का एक स्पेशल बेनिफिट यही है कि आपकी डोर अरे आपके घर के पास ही, नज़दीक पास ही एक उनका शॉप सिचुएटेड रहता है, तो वहाँ पर आप नज़दीक जल्दी से आके परचेस कर सकते हैं। तो बीइंग अ रिटेलर क्या करेगा, होलसेलर से एक मिनिमम अमाउंट तक लार्ज अमाउंट तक वो खरीद करेगा उनके पास से, फ्रॉम होलसेलर से, और जैसा कस्टमर को रिक्वायरमेंट रहता है उनको वो फुलफिल करते जाते हैं और थोड़े घर के नज़दीक पास ही उनका शॉप ओपन किया जाता है। इससे क्या हो जाता है कि रिटेलर्स को टाइम बच जाता है, डायरेक्टली ही कैन बाय द गुड्स हाउ मच ही वांट रिक्वायरमेंट। तो दिस व्हाट अबाउट कन्वीनियंस इन बाइंग। नेक्स्ट होता है प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। समटाइम व्हाट हैपन कि कंज्यूमर क्या करेगा, क्रेडिट उधार से भी लेगा और ये रिटेलर ही विल प्रोवाइड दिस सर्विसेज, उनको उधार से भी देगा और जब भी एक मंथ होने के बाद में जो उसका हिसाब है उसको पेमेंट करके नेक्स्ट अगले गुड्स लेके आएगा। ये फैसिलिटीज भी रिटेलर प्रोवाइड करेगा। So these retailers sometimes provide a credit facility to their regular buyers. They enable a retailer to increase their level of consumption and thereby their standard of living. So these are the things what the retailer provide the service to the consumer. Credit facilities will also be given to them. Next, wide selection. When it comes to retailers, what it happen, when you see the wholesaler, they deal in limited product, they buy large quantity and they sell it off. But retailers are not like that. What retailer here they are going to do, they will buy the goods from all the wholesalers. So variety of goods which we can see it when it comes to the wide selection retailers. When the retailer they display all the goods in the shop, variety of products you may be getting. If you see the example of toothpaste, there are many kinds of a toothpaste you are going to get. Soaps, many kind of a soaps are there. So many kinds of a different products you are able to see it out. If you see the rice or jaggery or any goods are there, multiple quality of goods they are going to maintain it out. So wider selection, wider choice which will be kept by the retailer. So retailer generally keep the stock of variety of product of different manufacturer. They enable a consumer to make their choice out of a wide selection of goods. यानी कि from the consumer also they can select among the many qualities, many choices will be there, many alternatives will be there. Among that they can see and they can to the best of cost and the quality they can select the price. That is possible with the help of retailers when he gives this kind of a wide selection of choice to the consumers. Then after sales services, yeah, this is one other thing. After sales services, retailer provide information after sales services in the form of home delivery, supply of spare parts and attending to customer. This become an important factors in a buyer's decision for repeat purchase of the product. As a retailer, he provide one of the most important and additional facility to the customer, that is home delivery services will be given, supply of spare parts will be given, attending to customer. When the customer problems are there, he is the person who is going to attend and try to solve the problem of the customer. So this is one of the most important factors where the buyer decision for repeat purchase of their products. So like that, as a retailer, he maintained a good relationship with the customer, so that whatever after sale of goods also he provides the additional services to them. This is what about after sale services. Thank you.